یہ کوشش کرے کہ خواتین کو گرین سکلز کے اندر ٹرین کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے گرین انٹرپرینیورشپ کو ہم پروموٹ کریں. مختلف آگے آنے والے ایئرس میں انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہونی ہے، بزنسز بھی ہونے ہیں. اسپیشلی ٹورزم کا جو انفلیکس ہے اس کو ہم نے اگر صحیح طور پہ پلاننگ کے ساتھ اس کو آگے نہیں چلایا تو ہمارا انوائرمنٹ بہت ہی خراب ہونے کا خدشہ ہے. اسٹرکچر بن رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. ڈفرینٹ اسٹالس لگائے ہیں جو انوائرمنٹل کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے کوئی 3 سال سے ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ میٹ بنایا ہے، یہ ہم کیمپنگ میں جب جاتے ہیں تو ساتھ ہم اس کو یوز کر کے لے جا سکتے ہیں. اپنے گھروں میں ہم لوگ سمپل اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ خراب کبھی نہیں ہوگا. اگر یہ فار ایگزامپل یہاں کہیں سے خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے یا نکل جاتا ہے تو جب ہم اس کو سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو یہ واپس سے جو ہے نا باؤنڈ ہو جاتا ہے اور شیپ اس کو واپس سے آ جاتا ہے. پہلے یہ جو سروس ہے وہ میں ڈسٹرکٹ نگر کے اندر دے رہی تھی، ابھی یہ براڈ اپ کیا ہے. ابھی جو سروسز ہے وہ میں گلگت مین سٹی کے اندر دے رہی ہوں. کے لیے زمین نہیں رکھتے ہیں تو گھر میں سبزی وغیرہ کا کیا کرتے ہیں؟ آپ باہر سے منصیرہ والی سبزی خریدتے ہیں؟ 15-20 تھوڑا مطلب مجھے ملا ہے لیکن اپنا گھر چلانا. مثال کے طور پر اگر گھر میں ایک مرد کمانے والا ایک مرد ہوتا ہے تو پھر سارے بوجھ اس کے اوپر پڑتی ہے. بچوں کی تعلیم، صحت، کھانا پینا. یہ ایک عرصے کا ایک اہم رول ہے خواتین کو باہر نکالنے میں، کاروبار سکھانے میں اور ان کو کاروبار کرنے کے لیے گرانٹ دینے میں. تقریباً میرا ہنی یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 14-15 سالوں سے میں ہنی کا کاروبار کرتی ہوں. تو شروع میں ایک تھی، پھر اس کے بعد ہم 9 خواتین 9 اسٹار وومن ایسوسیشن ہمارے ادارے کا نام ہے. اس وقت ہمارے ادارے میں صرف 400 خواتین ایگریکلچر پہ بزنس کر رہے ہیں. ہنی کا یہ ہے کہ ایک RSP نے مجھے ٹریننگ کروایا NRC اسلام آباد بیچ کے. اس وقت ہم 11 خواتین نے ٹریننگ کیا. ابھی اس وقت گلگت بلتستان میں بہت سارے خواتین ٹریننگ کیے ہوئے ہیں اور شہد کا کاروبار کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ گورنمنٹ ایگریکلچر بھی ان کو خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو بھی ٹریننگ کروایا. میں ایک RSP کا سب سے پہلے شکریہ ادا اس لیے کروں کہ خواتین کو باہر نکالنا، بولنا، کرنے کا سکھایا، طریقہ سکھایا. اس وقت کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں تھا جو خواتین کو باہر نکالے. ایک RSP کا ایک رول ہے کہ خواتین کو باہر کس طرح نکالنا، کاروبار کس طرح کرنا ہے. اور اویرنیس سیشن، آگاہی سیشن، سکل ڈیولپمنٹ، ہر ایک سیشن خواتین کے لیے ایک RSP وقتاً فوقتاً ہر ادارے میں، ہر ایسوسیشن میں، ہر CSO میں، ہر LSO میں یہ ایک RSP ان کو رکھتا ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور ادارہ ہے ETI اور IFAD اور ایسے بھی ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے. اور یہ سن 2019-20 میں یہ آیا تھا یہ پروجیکٹ. ان لوگوں نے یہ خواتین کے لیے ہر ایسوسیشن، ہر تقریباً گلگت بلتستان میں 162 سوسائٹیاں بنائے. یہ ETI نے 162 سوسائٹیوں میں تقریباً گلگت بلتستان کے 20,000 فارمرز اس میں شامل ہے. ETI پہ اس سوسائٹی میں 20,000 فارمر شامل ہے. اور یہ زیادہ تر ایگریکلچر فوکس کیا ہوا ہے، ورٹیکل فارمنگ کے حوالے سے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Khushbu and I am from district Nagar. My business is about floriculture اور بزنس کا جو نام ہے وہ خوشبو فلوریکلچر ہے، جس میں ہم لوگ جو ہے ڈفرینٹ ورائٹی کے فلاورز سیل کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ نگر کے اندر، منزا نگر کے اندر آلموسٹ کوئی 40+ ورائٹی ہے ہمارے پاس فلاورز کی. اس کے ساتھ ہینگنگ پوٹس ہے، اسٹینڈس ہے، سمپل فلاورز ہیں. تو پلاسٹک سے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پولیوشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پلاسٹک جب ہم لوگ جلاتے ہیں تو اس سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہوا میں جا کے مکس ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگ وہ انہیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے باڈی کے اندر ڈفرینٹ ڈیزیزز کوز ہوتے ہیں. پہلے یہ جو سروس ہے وہ میں ڈسٹرکٹ نگر کے اندر دے رہی تھی، ابھی یہ براڈ اپ کیا ہے. ابھی جو سروسز ہے وہ میں گلگت مین سٹی کے اندر دے رہی ہوں سے دنیور سائڈ پہ. تو اگر میں بات کروں کہ یہاں گلگت سٹی کے اندر اور بھی نرسریز ہیں، لیکن میرا یہ ڈفرینشیٹ کیسے کرتا ہے ان نرسریز سے اور میری یہ نرسری ڈفرینٹ کیسے ہے. تو میں ہوم ڈیلیوریز دیتی ہوں ڈور سٹیپس پہ.
उन स्पेशल फीमेल्स को टारगेट कर रही हूँ जो वर्किंग लेडीज़ है या फिर घर के अंदर जो काम करती हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती है, स्पेसिफिक टाइम निकाल के जाके नर्सरी जाके फ्लावर्स नहीं ख़रीद सकती है, उनको मैं व्हाट्सएप और इंस्टा फेसबुक के थ्रू ऑर्डर्स लेती हूँ, फिर उनको होम डिलीवरीज देती हूँ। उसके साथ साथ मैं ख़ुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिज़नेस ऐसा टच दे दूँ जो मतलब हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी सूटेबल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये खुशबू फ्लोरिकल्चर का इस्टेब्लिशमेंट दिया है थ्रू AKRSP के सपोर्ट से, जिसका एक वो आया था, क्या कहते हैं, तो स्टार्ट अपना कारोबार के नाम से इनका एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसमें मैं अवॉर्डेड हूँ। उसके अवार्ड के थ्रू ही मैंने अपना ये जो है खुशबू फ्लोरिकल्चर का जो आइडिया है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है। थैंक यू सो मच। फरीदा मंजूर है और मैं स्पोर्ट्स साइंस की स्टूडेंट हूँ कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। आज 5 जून 2024 एनवायरमेंटल डे है, जिसके बिहाफ पे जो है ना यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ है KIU में मुशर्रफ हॉल में, और बाहर जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के थ्रू जो है ना हमने दिखाना है कि हम एनवायरनमेंट को जो है वो कैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या किस तरह जो है ना हम अपने एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूथ राइज इनिशिएटिव की तरफ से आए हैं। ये हमारा एक NGO है जिसमें मैं कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन मैनेजर का काम कर रही हूँ। तो हमने जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ कलेक्ट किए, लेकिन उनमें से हमने एक आइडिया ये चूज़ किया प्लास्टिक का, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा सब यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और प्लास्टिक से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशंस होते हैं। एक तो ये कि प्लास्टिक जब हम लोग जलाते हैं तो उससे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हवा में जाके मिक्स होते हैं, और जब हम लोग वो इनहेल करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज होते हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना जो है ना इस पे काम करें, प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करें। तो हमने अपने एरिया में देखा कि जहाँ जहाँ हमें नीचे प्लास्टिक्स नज़र आते थे हम उनको उठा के इकट्ठा करते थे, घर लेके आते थे। ऐसा करते हुए फिर हमने एक जो है ना प्लास्टिक का ढेर बना दिया, और उससे हमने कुछ चीज़ें बनाई जिनको हम लोग रीयूज़ कर सकें। तो हमारे जो है ना यूथ राइज इनिशिएटिव का एक ये इनिशिएटिव है कि हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमें प्लास्टिक्स नज़र आए उनको हम उठाते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। ये हमने एक मेट बनाया हुआ है प्लास्टिक से, ये आप देख सकते हैं। करीबन कोई 3 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो ये मेट बनाया है, ये हम कैंपिंग में जब जाते हैं तो साथ हम इसको यूज़ करके ले जा सकते हैं। अपने घरों में हम लोग सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब कभी नहीं होगा। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कहीं से ख़राब हो जाता है, फट जाता है या निकल जाता है, तो जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये वापस से जो है ना बाउंड हो जाता है और शेप इसको वापस से आ जाता है। इसी तरह के हमने दूसरे बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं, जैसे कि आप ये एक छोटा सा कुशन देख सकते हैं, इस तरह का कुशन जो कि बहुत कंफर्टेबल है। ये आप जो है ना कैंपिंग में अगर गए तो साथ लेके जा सकते हैं। पिछली बार जो है ना कज़र में एक जगह थी जहाँ पे फ्लड आया था, तो हमने क्या किया, वहाँ के जो मुतासरीन थे उनको जो है ना ये चीज़ें हम लोग बना के प्रोवाइड करते थे, और रास्ते में जो बेगर्स हमें मिलते थे ऐसे ही उनको हम लोग ये चीज़ें बना के देते थे ताकि वो अपने लिए यूज़ कर सके और हमारा माहौल है वो भी साफ़ रह सके। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम एनिमल साइंसेस के BS4 के स्टूडेंट्स हैं। हमने आज इन्वायरमेंटल डे के थीम के मुताबिक हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया जिसमें हमने 2 पोर्शंस बनाए। एक में हमारे पास ड्राई लैंड एरिया है और दूसरी तरफ हमारे पास ग्रीन एरिया है। तो हमने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी लैंड को, अपनी अर्थ को हम बचा सकते हैं। ऐसे जैसे कि अगर हमने ग्लेशियर का सही इस तरीके से इस्तेमाल किया तो हमारे पास क्या होगा, जो ड्राई लैंड एरिया है वो हमारे पास ग्रीन एरिया में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइफ क्या है, हमारे पास सस्टेनेबल एक अच्छी सी लाइफ है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स भी है और ह्यूमन बींग्स भी है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनिमल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, खुद से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे सारे प्लांट जो है वो सूखे हुए हैं, और यहाँ पे ग्लेशियर्स ना होने की वजह से यहाँ पे लाइफ क्या है हमारे पास डिस्टर्ब है।
अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है, जैसे कि आप सबको पता है कि 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दफ़ा का जो हमारा थीम था, हर साल का एक थीम होता है, और इस दफ़ा का जो हमारा थीम था वो हमारा है रिजिलियंस, डिफॉरेस्टेशन और जो है ना आपकी लैंड रिस्टोरेशन का। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि हमारे पास थर्ड पोल है और इसके अंदर जो हमारे पास लैंड है वो थोड़ी सी ही रह गई है, और टोटल 2% लैंड के ऊपर जो है हम हैबिचुअल हैं, तो फिर हैबिटेबल हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे पास जितनी लैंड बच गई है हम उसको जो है संभाल के रखें। और आज का जो हमारा लोगो है, दैट इज़ आवर लैंड आवर फ्यूचर। अपने लैंड को अपना फ्यूचर समझें और इसे प्यार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है जी इन्वायरमेंट का, और गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा इन्वायरमेंट की अहमियत किसी इलाके में नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली अफेक्ट हो रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज है या एनवायरनमेंट जो डिस्टॉर्ट हो रहा है उसकी वजह से। और हमें हमारे लोगों को अवेयरनेस की इसलिए ज़रूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त एक डेवलपिंग एरिया है। यहाँ पे मुख्तलिफ आगे आने वाले ईयर्स में इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होनी है, बिजनेसेस भी होने हैं। स्पेशली टूरिज़म का जो इन्फ्लक्स है उसको हमने अगर सही तौर पे प्लानिंग के साथ उसको आगे नहीं चलाया तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब होने का ख़दशा है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्लाइमेट रेजिलियंस टूरिज़म की ज़रूरत है। जितना बड़ा इन्फ्लक्स आ रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले इस साल या अगले साल, उसके लिए अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट शदीद ख़राब होने का ख़दशा है। और खुदा न खास्ता ये मज़ीद ख़राब हो गया तो इसके इफ़ेक्ट्स सिर्फ हमारे रीजन तक नहीं रहेंगे बल्कि इसके इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान और दुनिया भर में रहेंगे, क्योंकि हमारे जिस स्पीड से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और बाकी भी क्लाइमेट के हवाले से जो डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, ये राइट टाइम है इसको कंट्रोल करने की बहुत तशद्दुद ज़रूरत है, क्योंकि मज़ीद अगर टाइम गुजर गया तो शायद हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरह के आज चूँकि इन्वायरमेंट का इंटरनेशनल डे है तो इस तरह के अवेयरनेस सेशंस की बहुत अशद ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के सेशंस को हम आगे उन एरियाज़ तक फैलाएं जहाँ पे इन सेशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं, आप और बाकी लोग जो इन अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या जो रिलेटिवली ज़्यादा एजुकेटेड हैं उनको ऑलरेडी इन्वायरमेंट के हवाले से चीज़ों का पता है। जो असल स्टेक होल्डर्स हैं जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट वाकई ख़राब हो रहा है, उनकी अवेयरनेस और उनको बताने की, उनकी ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह के सेशन मज़ीद होने चाहिए और इसका स्कोप और इसका एक्सटेंशन उन एरियाज़ तक होनी चाहिए जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस साल भी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल के कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हाल में हम मना रहे हैं और इस वक्त वो प्रोग्राम जारी है। जैसा कि आपने पूछा कि इस दिन के हवाले से कितनी इम्पोर्टेंस है, गिलगित बल्तिस्तान को अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाके 10-15 साल पहले के गिलगित बल्तिस्तान को देखें और आज के गिलगित बल्तिस्तान को देखें, जिस एरिया में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, कराकुरम यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये बिल्कुल एक बेरन लैंड थी यहाँ पे और छोटा सा एक कॉलेज था, इंटर कॉलेज। आज देखें तो ये बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद एक सिटी बन गया है यहाँ पे। इसी तरह पूरा सिटी का ये सूरत हाल है गिलगित सिटी का कि वो बिल्कुल अनप्लान्ड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और अनप्लान्ड जो है ना आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप टूरिज़म की एग्ज़ाम्पल दें, आपके तकरीबन 2 मिलियन आपके जो टूरिज़म है वो सालाना गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं और उनकी भी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती है। वो जिधर जाएं जो करें उनकी मर्ज़ी है, शॉपर लेके जाएं, फेंक के वहाँ पे, ठीक है, गार्बेज फैलाएं। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली होता ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह से कहीं पे टूरिज़म के लिए जाता है तो उससे प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और उस रेवेन्यू को इससे क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए उस पे इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें बेहंगम चल रही होती हैं और रिसोर्सेज का यहाँ पे बेदरेक मतलब यूज़ हो रहा है, वाइसली इसको यूज़ नहीं कर रहे हम। जैसे हमारा पानी है वो पोल्यूटेड हो रहा है,
हमारा टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ रहा है और हमारी जो ज़मीनें थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी और फॉरेस्ट लैंड थी, वो ख़त्म हो रही है। वहाँ पे धड़ाधड़ हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है और इसी तरह अगर खुदा न ख्वास्ता हम जिस डगर में अभी जा रहे हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्शन और बेहंगम इसकी डेवलपमेंट होगी तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो न यहाँ के जो फ्रूट्स देख सकेंगी और न यहाँ के परिंदों को देख सकेंगी और न यहाँ के जो नायाब हमारे जानवर हैं उनको देख सकेंगे। वो हमसे पूछेंगे उस वक़्त जब हम बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे जवान होंगे तो हमसे पूछेंगे मारखोर, कस्तूर मारखोर मशहूर होता था, वो किस तरह का है और वो कहाँ पाया जाता था। तो बजाय इसके हम इस इन्वायरमेंट को अभी से बचाएं और ये तमाम चीज़ों को हम प्रॉपर कंजर्वेशन करें इनकी और वाइजली इसकी डेवलपमेंट करें और जो एरियाज़ बेरन है वहाँ पे हम कोशिश करें कि अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको वहाँ पे करें और कंस्ट्रक्शन भी जो यहाँ पे चल रही है वो टोटली आपकी जो आरसीसी बिल्डिंग्स है वो बन रही है, बजाय उसके हम इको फ्रेंडली हमारा जो अपना कदीमी जो तरीक़ेकार है कंस्ट्रक्शन का उसको हम प्रेफर करें तो मेरे ख़्याल में हम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को, स्पेशली यूथ को मैं ये कहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें और इस जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं जीबी के अंदर, स्पेशली ग्लाफ के जो इवेंट हो रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, अगर आप लोग आगे बढ़ के इसको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कल ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये भी खंडरात का मंजर पेश करेंगे। तो अभी से ही हमने सब ने मिल के जो है ना इसको बचाने की हमने कोशिश करना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इन्वायरमेंटल डे है और इस हवाले से यहाँ पे KIU कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हैं जो इन्वायरमेंटल को प्रमोट कर रहे हैं अपने। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्होंने वेस्ट मटेरियल से इन्होंने ये चीज़ बनाई है। ये डस्टबिन है, इन्होंने इसको वो किया है और ये फ्रूट का इन्होंने बास्केट वो बनाया हुआ है। तो इस तरह ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रमोट की हैं आगे इन्वायरमेंट के हवाले से कि इसको जो है ना यूज़ में लाया जा सकता है। ये हम अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों को, इस तरह वेस्ट वाली चीज़ों को दिखा के ये बनवाएं तो इस तरह काफ़ी बच्चे हमारे सीख सकते हैं इस चीज़ों से। और इन्होंने इन्वायरमेंटल के हवाले से ही ये चीज़ें प्रमोट की हैं आगे। कि हम आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करें, जिसमें तमाम जो की स्टेक होल्डर्स है वो अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। GBRSP का भी इसमें आज एक्टिव रोल हमारा रहा है और हमें प्ले भी करना चाहिए क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में इन्वायरमेंट जो है ना वो क्रॉस कटिंग थीम है और हम ये कोशिश करें कि ख़वातीन को ग्रीन स्किल्स के अंदर ट्रेन करें और साथ साथ जो है ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करें। और जैसा कि इस दफ़ा का थीम है कि लैंड की प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है हमने, तो उस हवाले से भी हम पेस्टिसाइड्स की का यूज़ है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ है, इनको हम जो है ना वो डिस्करेज करें और उसके साथ साथ जो है रेगुलेशंस पे हम जोर दे रहे हैं कि टाउन प्लानिंग के ऊपर, माइनिंग के ऊपर और दूसरी तीसरी जो काम हो रहे हैं टूरिज़म के हवाले से, इको टूरिज़म की प्रमोशन के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर जैसे कि स्पीकर साहब ने कहा रेगुलेशंस होने चाहिए। हम इस चीज़ को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं ताकि जो हमारा लैंड है वो उसकी जो है ना वो सेव हो जाए और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए। थैंक यू सो मच जी।